रतिवाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिभक्तिपराजै च हरिनामपरायणा दुर्वृत्ता वा सुवृत्ता वा तेषां नित्यं नमो नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं वैशं ततो जयमुदीरयेत्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশয় অভীষ্ট পূরণ। দুর্গমে পথিমেন্ধস্য স্খলৎপাদগতির্মোহ সকৃপা যষ্ঠিদানেন সন্ত সন্ত্যবলম্বনম। নিচে প্রথম ঘরে ঠাকুরের ঘরে প্রথমে ঢুকেই যে শাখা এটা কোনো উপরে অঙ্গন করা আছে। শিশিরে কুরুতে কদানো নহ শিকিপিচ্ছা ভরণ শিশুর দৃশ যুগল বিগলন মধুদ্রবস্মিত মুদ্রা মৃদুনা মুখেন্দুনা। পরম পূজ্যপাদ পরম অনুরাগী রাধা মাধবের উন্নত উজ্জ্বল লীলারসনিষ্ঠ স্নিগ্ধ চেতা বৃন্দা বিপিন বাস্তব্য শ্রীপাদ লীলাসু কবীন্দ্রচরণ। তিনি তার শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতে 24 সংখ্যক প্রলাপ বর্ণনে রাধারানীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সখীভাবে বিভাবিত চিত্তে সাক্ষাৎ রাসরস রসিক রসিকেন্দ্র মৌলি রাসবিহারী আনন্দকন্দ অভিনব ব্রজানন্দ শ্রী রাধা নয়নানন্দের সাক্ষাৎ দর্শন কামনা করতে গিয়ে
রাধারানী যেমন আকুলিনী হয়ে সখীকে বলেন বিরহাবসরে, তেমনি রাধার সখী ভাবে লীলাসুখ বলছেন, শিশিরি কুরুতে কদা নু নহ, আমাদের নয়নকে নহ অস্মাকম, আমাদের নয়নকে উনি কবে শীতল করবেন। একেবারে শিশিরের মতো কেমন তিনি শিকিপিচ্ছা ভরণ। গোবিন্দের অঙ্গে তো অনেকই আভূষণ বিরাজ করছে, কিন্তু সেগুলির উল্লেখ না করে কাজ গুঞ্জা মণি স্বর্ণ নানা অলংকার থাকলেও উল্লেখ করছেন বৃন্দাবনের বনবিহারী ময়ূরের পুচ্ছকে। ময়ূর পুচ্ছের চূড়াই কি শ্রীকৃষ্ণের বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনর্ঘ আভরণ? বললেন হ্যাঁ, কিরীট চূড়া সব ভগবৎ স্বরূপেই আছে, কিন্তু এই রকম গুঞ্জা পুষ্প দিয়ে গড়া ময়ূর পুচ্ছের চূড়া কোন ভগবানের মাথায় শোভা পায়? বিনা রাধা রমণের। শিকিপিচ্ছা ভরণ, লীলাসুকের চোখে ভাসছে গোবিন্দের ময়ূরপুচ্ছের চূড়া। স্ফূর্তিতে অনুভব, উনি যেন লীলা দর্শন করছেন। শিশু বলছেন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড পালককে উনি বালক কি করে বললেন? বললেন কেন, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তো ওনাকে বালক রূপেই দেখলেন। করার বৃন্দে নপদার বৃন্দম, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চোষণ করছেন। তাহলে রাধারমণ কি বালক? বলেন না, বালক নয়, নবকিশোর নটবর, কিন্তু ভাবে মনটা একেবারে কমনীয়, এত কম্র যে মনটা একেবারে তরতাজা কিশোরের মতো। আর কি অনুভব করছেন? যে মধু ধারা বিগলিত হচ্ছে, হাসির সঙ্গে মধু বিগলন, মধুদ্রব। এটা কি? বললেন শব্দ ব্রহ্মময় বেণু, বাঁশি বাজাচ্ছেন হাসির সঙ্গে আর অভিনব মুদ্রায়। এমন অঙ্গভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছেন, নৃত্য ভঙ্গিতে, মুখখানার দিকে তাকালে মনে হচ্ছে কত পূর্ণচন্দ্র ওই মুখখানাকে সব সময় আরতি করে চলেছে। ভক্তগণের প্রাণ প্রদীপ শিখায়। ব্রহ্মাণ্ডে কোটি কোটি ভক্ত, তারা
তাদের কোটি প্রাণ প্রদীপ শিখায় সব সময় ওই মুখখানাকে নিরাজন করছে। অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের, অনন্ত কোটি পৃথিবীর, অনন্ত কোটি আকাশের চাঁদ ওই মুখ তার চরণ নখ প্রান্তকে আরতি করতে করতে ওই চরণেই শরণ নিচ্ছে। আচ্ছা, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যদি অনন্ত কোটি পৃথিবী থাকে, অনন্ত কোটি আকাশের চাঁদ থাকে, সেই চাঁদগুলো যদি প্রদীপের বাতি হয় আর তার পদনখ চন্দ্র চন্দ্রিকা ছটাকে যদি আরতি করে এবং চন্দ্রগুলি সব যদি তার নখচন্দ্র কিরণ প্রান্তে শরণ নেয়, এমন মহিমান্বিত যিনি, তার মুখেন্দুর বর্ণনা কে করবে? এখানে তো সরস্বতীও চুপ হয়ে যান। ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে শ্রেষ্ঠ কথিকা, বাচিকা, অধ্যাপিকা, প্রবাচিকা হচ্ছেন ভগবতী সরস্বতী, বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনিও চুপ হয়ে যান। বা বাগদেবী, ভগবতী ভারতী। তাহলে উনি যখন চুপ হয়ে যান, তাহলে আর বর্ণনাটা কে করবে গোবিন্দের মুখ চন্দ্রের? মুখেন্দুনা তিনি ময়ূর পুচ্ছের চূড়ায় বিভূষিত বেণুগান, মধুর বিশ্ববিমোহন হাসি আর অপরূপ তার অঙ্গভঙ্গিমা, ভ্রুভঙ্গিমা, নেত্রভঙ্গিমা, প্রতি অঙ্গে অঙ্গে অনঙ্গ ভঙ্গিমা। বর্ণনার কি কোনো ভাষা আছে? মলয়জ পবনে চলিত শিখি চন্দ্রক, এখানে তো সব সময়ই চিরবসন্ত। মলয় পবন বহত মন্দ, চন্দন গন্ধ নিয়ে, পুষ্পগন্ধ নিয়ে, ফুলের পরাগ রেণু নিয়ে, রাধা মাধবের অঙ্গগন্ধ নিয়ে এখানকার পবন প্রবাহিত হয়। ধন্য পবন। মলয়জ পবনে চলিত শিকি চন্দ্রক, বৃক্ষ শাখাগুলি পবনান্দোলনে, লতাগুলি দুলছে, ফুলের পাপড়ি ঝরে পড়ছে, পরাগ উঠছে। যমুনার জলে পবনের খেলা, তরঙ্গায়িত হচ্ছে নীল জল। বিচিত্র পক্ষীগণের কলকাকলি কানে ভেসে আসছে, কলকণ্ঠ বিহঙ্গম কুলের কলকুজন। ভ্রমরের ঝঙ্কার, নূপুরের সিঞ্জন, বীণার কন কন নিকন, বলয়ের ধ্বনি, আভূষণের ধ্বনি, হাস্য পরিহাস কলতান কলরব কথা গানম। বাতাসে তো এইগুলি আসছে। রাধা মাধব কথা বলছেন, সখী মঞ্জরীগণ কথা বলছেন, এত বাছুর গায়ের শব্দ, বাঁশি বাজছে, এত পাখি ডাকছে, এত প্রকার ফুলের গন্ধ, ভ্রমরের ঝঙ্কার, বলয়, নূপুর, আভূষণের ধ্বনি। বাতাস এইগুলিকে এদিক থেকে ওদিকে দিচ্ছে, ওদিক থেকে এদিকে দিচ্ছে। লতা এবং বৃক্ষাগ্রকে কম্পিত করছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি কাঁপাচ্ছে বৃন্দাবনের বায়ু কাকে? বললেন গোবিন্দের মাথায় যে ময়ূরপুচ্ছের চূড়া রয়েছে, সেই চূড়ার ময়ূরপুচ্ছগুলিকে নিয়ে আর আন্দোলিত করছে, পতাকাও উঠছে, রমণীর আঁচলগুলিও উঠছে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি বাতাস আনন্দ পাচ্ছে গোবিন্দের সেই চূড়ার ময়ূরপুচ্ছগুলিকে কাঁপিয়ে।
মলয়জ পবনে চলিত শিখি চন্দ্রক, চাঁদ মুরছে হেরি বদনা। ওহো ভজহু নন্দকি নন্দনা। চাঁদ মূর্ছিত হয়ে যাচ্ছে গোবিন্দের মুখখানাকে দেখে। চাঁদ মূর্ছিত হলো, কে বললো বলেন? ভাগবতে কামার্দিত শশাঙ্কশ্চ সগণ বিস্মিত ভবৎ। এখানে চন্দ্রের মূর্ছা বলতে বিস্ময়। সূর্য দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, না চলে রবির রথ। রবির রথে একটা চাকা, এক চাকার রথে উনি ঘোরেন। ঘোড়াগুলো আবার সবুজ রঙের, এই জন্য হরিদর্শ সহস্রার্চি, সূর্যের এগুলি নাম। তো সেই মরিচি মালি, তার রথ দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, ঘোড়াগুলো আর এগোতে পারছে না। না চলে রবির রথ, বাজি নাহি পায় পথ। বাঁশির সুরে আকাশের চন্দ্রমা বিস্মিত হয়ে গেছে তারকাদের নিয়ে, মানে রাত্রি সৌরমণ্ডল স্থির। ওই জন্যই তো বোঝাও যাচ্ছে না চাঁদ মাথার উপরে, কিন্তু 4000 যুগ চলে গেল। মাথার উপরে এক চাঁদ, কিন্তু সেই মাথার উপরে থাকতে থাকতে কি করে 4000 যুগ চলে যায়। ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে রাসে যে নাচ গান, জলবিহার বনবিহার ভোজন শয়ন হয়েছিল, তাতে 4000 যুগ ব্রাহ্মী নিশা চলে গিয়েছিল। এটা কি করে সম্ভব? অথচ ভাগবতে মহর্ষি ব্যাসবাণী পরমহংস কুল মুকুটমণি শ্রী শুকদেবের ভারতী, ঋষি মুনিগণ শ্রোতা, তো তারা কি অলিক গল্প শুনবেন? এই যে ভৃগু, বশিষ্ঠ, চ্যবন, গৌতম, মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পরাশর, বশিষ্ঠ, নারদ বসে মাথা হেলাচ্ছেন, চোখের জল ফেলছেন, পুলকিত হচ্ছেন, অশ্রু বৃষ্টি করছেন। এরা কি বয়র্ষিয়ান মহর্ষি হয়ে, মহিয়ান মহর্ষি হয়ে, এরা কি কোনো একটা 16 বছরের বালকের মুখে গাল গপ্প শুনছেন? তা তো না। ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিত, চাঁদ মুরছে হেরি বদনা, অলকা আবৃত হার, তিলক মনোহর ঝলমল বদন উজোর। ক্ষণে ক্ষণে সাজেন, কোন সময় কুন্দকুসুমের মালা পরছেন, কোন সময় মালতীর মালা, কোন সময় বৈজয়ন্তী মালা, কোন সময় বনমালা, অলঙ্কার আভূষণ ক্ষণে ক্ষণে বদলান। মকরাকৃতি কুণ্ডল শ্রবণ হি লোলত, দোলত থোর হি থোর। কখনো মকরাকৃতি কুণ্ডল, কখনো দোলদুল্যমান কুণ্ডল। কুটিল দৃগঞ্চল মদন কুসুম সর, কুটিল নয়নে তাকান। নারায়ণ তো এইভাবে তাকান না, নরসিংহদেব এইভাবে তাকান না, বামনদেব তো এইভাবে তাকান না, কই বর্ণনা তো নেই। রামচন্দ্র তো এইভাবে, উনি কেন তাকাবেন? উনি তো রাজমণি বিজয়তাম, উনি তো রাজ ও রাজেশ্বর কৌশলেন্দ্র। তো উনি এইভাবে তাকাবেন কেন? এইভাবে তাকায় কারা? ভালো মানুষ এইভাবে তাকায়?
কুটিল দৃগঞ্চল মদন কুসুম স্বর। কুটিল নয়নের কটাক্ষ যেন মদনের কুসুম স্বর। ভালে শোভিত ভাউ কামানে, আর কামেরও কামান। এই যে ভ্রুলতাকে মনে হচ্ছে ধনু, এইটা যেন ভাঙ ধনু। ভ্রুলতা জোড়া ভুরু যেন কামের কামান। কেবা কইল নিরমান, এটা যদি বান হয় তাহলে এটা হবে ধনু। তরল নয়নে, দৃষ্টি খুব চঞ্চল। তরল নয়নে তেরছ চাহনি, মনে হয় ওদিকে তাকিয়ে আছেন, আসলে দেখছেন এদিকে। মুখ ঠিক আছে, মুখ সোজাই আছে, কিন্তু তারকা এখানের থেকে এখানে আসছে, এখানের থেকে এখানে আসছে। তরল নয়নে তেরছ চাহনি, যেন বিষম কুসুম বান। যেন মনে হচ্ছে বিষ মাখানো বান বিদ্ধ হচ্ছে হৃদয়ে। কি জ্বালা, কি ব্যথা, মনটাকে একেবারে বিষাক্ত করে দিল। কুটিল দৃগঞ্চল মদন কুসুম স্বর, ভালে শোভে ভাউ কামানে। এই ভ্রুয়ের বর্ণনা হচ্ছে। কুলবতী মরমে ভরমে যদি পৈঠহি, তব কিয়ে রহই পরাণে। যদি ওই নয়নরূপী বাণ একবার কুলবতীর মনে লাগে, মরমে লাগে, ভরমে যদি পৈঠহি, তব কিয়ে রহই পরাণে, তাহলে কি কুলবতী আর বাঁচবে? রমণীগণ স্বভাবতই সুন্দর পুরুষকে ভালোবাসেন, আর এই সুপুরুষের নয়ন ভঙ্গি দেখে তারা কি প্রাণ ধরতে পারবেন আর প্রাণে বাঁচবেন না? জর জর করু দিন রাতি, তখন কি মনে হয় রূপ লাগি আখি ঝুড়ে। তাকে দেখবার জন্য আবার যদি একবার দেখতে পেতাম সখী। জল আনার ছলে বারবার সরোবরে যায়, বারবার কুয়োর পারে যায়, বারবার যমুনার পারে যায়। শাশুড়ি মা বললেন, বৌমা আজকাল বেশি জলের প্রয়োজনীয়তা মনে হয় আমাদের বেড়ে গেছে। এই সকালে তুমি 3 বার জল আনতে গেলে, আবার দুপুরে, আজকাল জল বুঝি বেশি খরচা হচ্ছে মা। বারবার কলসি নিয়ে যে যমুনার পারে যাচ্ছ, পুকুর পারে যাচ্ছ, কুয়োর পারে যাচ্ছ, জলের খরচাটা বেড়েছে বুঝি মা। কি ছলে বাইরে বেরোবে তারা? ওই যে ঠাকুর মহাশয় বলছেন যে কি ছলে আমি কাঁদবো, আমার চোখে যদি জল দেখে তাহলে তো শাশুড়ি এসে বলবে, বৌমা তুমি কাঁদছ কেন? বুড়ি তো এরকম কাঁপতে কাঁপতে বুড়ি বলবে, তখন আমি কি উত্তর দেব? এই জন্য আমি একটা ফন্দি করলাম। শাশুড়ি মা রান্না করতে বলেছে, বউ রান্না না করলে সংসার চলবে কি করে? তো রান্নাঘরে গিয়ে কাঁচা কাঠ ভালো শুকোয়নি এমন ঘুঁটেগুলো বেশি করে উনুনে দিয়েছে। আগুন তো জ্বালিয়েছে কিন্তু ধোঁয়াই বেশি হচ্ছে। তখন কি করি? রন্ধন শালাতে যাই, বধূ তুয়া বধূ গুণ গাই, আমি ধোয়ার ছলনা করি কাঁদি। শাশুড়ি মা ভাবছেন যে বৌমা আমার ধোঁয়ার জন্য, বড়লোকের মেয়ে, ধোঁয়ার জন্যই তার চোখে জল। আসলে ওখানে সে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে কাঁদছেন, নামানন্দ রস অনুভব করছে। তুমি মণি নও মানিক নহ, অঞ্চলে বাঁধিলে রহ। তুমি ফুল নহ, যদি তুমি মল্লিকা, জাতি, জুথি, মালতী হতে তাহলে তো তোমায় খোপায় জড়িয়ে নিতাম, বেনিতে জড়িয়ে নিতাম। ফুল নহ করি বেশে,
এখন আমি তো রাস্তাঘাটে তোমার মতো ঘুরে বেড়াতে পারি না সখাদেরকে নিয়ে গাইয়ের পিছনে, বন থেকে বনান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে, দিক থেকে দিগন্তরে, কারণ আমি তো নারী। যদি নারী না করি তো বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি, আমি লইয়া ফিরিতাম দেশে দেশ। এই বাসনাটা আজকে পূর্ণ হলো। আজ রাধারানীর এই বাসনাটা পূর্ণ হলো। রাধারানী মহাপ্রভুর মধ্যে আজ রাধা ভাবে বিভাবিত গোরা, সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাই। ওই যে রাধারানী বলছেন তোমাকে বুকে নিয়ে আমি দেশে দেশে ঘুরতাম, তো ওটা তো বৃন্দাবন লীলায় পূর্ণ হয়নি। সেই দুই এক হয়ে যখন নদিয়াতে উদয় হলেন, সন্ন্যাস নিলেন, তখন অন্তঃকৃষ্ণ বহির গৌর দর্শিতাঙ্গাদি বৈভবম। এখন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বলতে কৃষ্ণকে বুকে নিয়ে আর গৌরাঙ্গ রাধা তিনি দেশ দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, চরণস্পর্শে শিলা গলাচ্ছেন, দৃষ্টিতে হরিনামের ধ্বনিতে, বাক্যে রাধা প্রেম দিয়ে, হাতিকে রাধা প্রেম দিয়ে আর নাচাচ্ছেন, সিংহ ব্যাঘ্র কেঁদে লোটায়, শিলা গলাচ্ছেন। দর্শন মাত্রে, দূরত শ্রবণ মাত্রে তাকে যে দেখলো, তাকে যে দেখলো, তাকে যে দেখলো, এই মতো পরম্পরায় বৈষ্ণব হইল সর্বদেশ। তাহলে গৌরাঙ্গ রূপী রাধা আজ কি প্রভাবটাই না বিস্তার করছেন। এই জন্য মধুর মনোহর রস ভরে ঢর ঢর, মধুর মনোহর রস ভরে ঢর ঢর। জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম নিতাই গৌর হরি ও। श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जीव की, श्री रघुनंदन सरकार की। आप सब खड़े हो जाइए कृपया। जगतगुरु जगतगुरु द्वाराचार्य मुलुक पीठाधीश्वर श्री अनंत शास्त्र विभूषित परम प्रपूज्य चरण प्रातस्मरणीय डॉक्टर राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज पधर रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम। महाराज प्रियंकिंग करवानी व जुस्माकं किंग प्रियंक करवानी। ना बयं खलु शिशव थोड़ा थोड़ा महाराज जी 15-20 मिनट चंद्र सरोवर में आपकी सेवा में प्रस्तुत होगा। असतम वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान्
सहगण श्री ललिता विशाखान्वितांश्च वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। फिर बोलिए कनक भवन बिहारी बिहारिणी जी की, श्री मारुति नंदन मंगल मूर्ति की, जगद्गुरु अनंत श्री विभूषित श्री राम रूप द्वितीय मर्यादा पुरुषोत्तम राम रूपावतार श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, श्री मुलुक पहाड़ी बाबा सरकार की, खाकचक वाले बाबा सरकार की, परम पूज्य भक्तमाली जी महाराज की, श्री अधुना इदानीन्तन सद्गुरु मूर्ति जगद्गुरु दाराचार्य मुलुक पीठाधीश्वर स्नातकोत्तर डॉक्टर श्री राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज की, उनके शुभागमन की, श्री उनके शुभ पदार्पण की। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णश जाशां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। अस्माकम् अधुना भूरि भाग्यं संजातम्। अहो भाग्यं नः वनौकशाम्। श्री राधा कुंड वास्तव्यानां यतः जगद्गुरु द्वाराचार्य मुलुक पीठाधीश्वराणाम् आदराधिक्येन बहुवचनं दास्यामि क्षम्यतां। जगद्गुरूणां दाराचार्याणां मुलुक पीठाधीश्वराणाम् इह अस्यां सभायां समागमनम् आगमनं संजातम्। अतः भवत्पदार वृंद द्वंदे बारं बारं नत्वा नामं भृशं आनंदं पुनः पौन्नेन अनुभवामि। श्री मद आचार्य चरणानां चरण सरोजान्तिके इदं प्रार्थये किंचित वचनामृत सुधाभि अस्माकं मरुस्थल सदृशं संतप्त विषय प्रचंड मार्तंड ताप प्रतप्त चित्तं हे भगवन् शमयन्तु शीतलीकुर्वन्तु शिशिरीकुर्वन्तु स्नापयन्तु अवगाहयन्तु अस्मान् विषय विदूषिताशयान् भगवत कथा रस सुधाभि भगवल लीला कथा मंदाकिन्याम् इति इयं क्षुद्रा प्रार्थना अक्षण्णतां फलमिदम्। अस्माकम् अक्षण्णताम् इदं फलम् श्री आचार्य पादानां संदर्शनम्। यतः भगवता व्यासेन उक्तम् अक्ष्णो फलं तादृश वैष्णव दर्शनम् त्वन्वा फलं तादृश भक्त स्पर्शनम् जिह्वा फलं तादृश वैष्णव नाम कीर्तनम् भक्तानां वैष्णवानां महज्जनानां महतां नाम कीर्तनम् भगवन् नाम वैष्णव नाम संत नाम खलु एकमेव तत्
सात्विकम किंचित सर्षप परिमितमपि नास्ति अनयोर अंतरा भेदः अतः जिह्वा फलम तादृश नाम कीर्तनम यत भागवता दुर्लभा हि लोके अस्मिन् लोके अस्यां सृष्टौ भागवता हि दुर्लभा दुर्लभो मानुषो जन्म देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम् अस्माकं भूरि भाग्योदयो संजात भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन इति रीत्या मुलुकपीठाधीश्वराणां वर्तमान समये अधुना इदानीन्तन काले संत साधु समाजे शतां सदसी शतां समवाये परिषदि मुलुक पीठाधीश्वराणां सम इव सदृश सदृक्ष अमुद्रिक्ष प्रवक्ता रसज्ञ अनुभवी सुलेखक संत सेवक गो सेवक शास्त्र प्रचारक आदर्श रक्षक धाम संरक्षक भजन संरक्षक नास्ति कोपि कदापि कस्मिंश्चित् न वयं उपलभामहे शृण्वन्तु सर्वे सावधानतया सुदामा दास जी महाराज श्री सुदामा दास तातपाद साधु सद्भि महद्भि तेन महद्भि प्रदत्य तेषां उपाधि संत सम्राट इति वयम् इति अस्माभिः श्रूयते। श्री वृंदावन धामनी वृंदा विपिने महारासस्थल्यां वंशीवट तटान्तिके श्री सुदामा दास जी महाराज अशेष संत सेवी सद्भि महद्भि वृंदावन वास्तव्यै सर्वै उपाधि प्रदत्त संत सम्राट इति न जाने एवं अश्रौषम। अतः वर्तमान समये किं वदामि वर्तमान समये श्री आचार्यपादः परम प्रपूज्य चरणा आचार्यपादः निखिल विरक्त साधु समवाये सदसी सम्राट इव सदैव राजते भाषते देदीप्यते प्रकाशते राजते मोह मोह पुनः पुनः राजते विराजते इति अस्माकं प्रार्थना भवतां श्री मुखोद्गीर्णं किंचित मधुभिः चरित्र पीयूष शेष सारं श्रोतुं वयम् अभिलषे इच्छामो अस्तु शम आश्रव किम अधिक किम अलम अधिकेन। नमः। इतनी ज़्यादा है, एक पहना एक कोई पहना
जी। कान्तिसितामृषति निंदित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसितांगशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। राधा करावचितपल्लववल्लरीके राधा पदांक विलसन मधुरस्थलीके राधा यशो मुखर मत्त खगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री तीर्थराज श्री राधा कुंड की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु की जय। श्री षडगोस्वामी वृंद की जय। श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की जय।
उनकी भजन कुटी की। पूज्य पाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पूज्य पाद श्री महाराज जी की। पूज्य पाद श्री महंत जी महाराज की। सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, समस्त ब्रजवासीन की। श्री दामोदर मास महामहोत्सव की। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधा गोविंद प्रभु की महती कृपा करुणा से श्री राधा कुंड के तट पर विराजमान होकर श्री सद्गुरुदेव भगवान की भावमयी सन्निधि में एवं विराजमान संतों की, वैष्णवों की, महापुरुषों की प्रत्यक्ष सन्निधि में पवित्रतम वैष्णव मास दामोदर मास कार्तिक मास के नियम सेवा के अंतर्गत आप सब लोगों के मंगलमय दर्शन का सौभाग्य एवं आप सबके मध्य बैठकर भगवत भागवत चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूज्य श्री महंत जी महाराज, विराजमान सभी पूज्य संत एवं श्री महाराज जी, सबके चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। आपने इस ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन, समस्त भाषाओं की जननी सुर भारती संस्कृत में जो कुछ उद्गार व्यक्त किए उनको हम साष्टांग प्रणाम करते हैं। हम तो इतनी बढ़िया संस्कृत बोल भी नहीं सकते। इतनी सुमिष्ट संस्कृत भाषा में आपने अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ किया कि हम तो तृप्ति का अनुभव नहीं कर पा रहे थे और अतृप्त होते चले जा रहे थे। भाषा ही इतनी मधुर है। पर जो प्रशंसा की गई वह कोई इस प्रकार का व्यक्ति होगा जिसकी प्रशंसा की गई होगी। सच्ची बात है कि दास में ऐसा कोई गुण नहीं है जो प्रशंसा के योग्य हो। पवित्र वैष्णव दामोदर मास कार्तिक मास है। अपनी जानकारी में झूठ बोलना चाहिए नहीं, बनावटी बात भी कहनी चाहिए नहीं। पर सच्ची बात है कि संत भक्त आचार्य ये होना तो बहुत दूर है। हम अपनी ओर देखते हैं तो हमें लगता है हम ईमानदारी से अभी मनुष्य भी नहीं बन पाए। सच्ची बात है, एकदम सही बात है, मनुष्य भी नहीं बन पाए। भगवान श्री रामकृष्ण के चरित्र को यदि हम अपने जीवन में, व्यवहार में शास्त्रीय सदाचार के रूप में अवतरित कर सकें तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। हम मनुष्य भी नहीं बन पाए। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र विराजमान है, कंठ में भगवान की प्राण वल्लभा श्री तुलसी जी विराजमान हैं। यह अपना पुरुषार्थ नहीं, अपना सुकृत नहीं, अपना कोई पुण्य नहीं, यह केवल और केवल पतित पावन दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु संत सद्गुरुदेव भगवान की कृपा है। उनकी कृपा का परिणाम है।
पता नहीं कितने जन्मों से कहाँ मलमूत्र की नाली में पड़े थे। ऐसे हमारे सदृश जीवों को सद्गुरुदेव भगवान ही कृपा पूर्वक उठाते हैं और श्री ठाकुर जी के योग्य बना देते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, या दृष्टा निखिलाघ शंघ शमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी सिक्तांत कत्रासनी प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्तात् तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। उन तुलसी महारानी के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, जो दर्शन मात्र से निखिलाघ शंघ समनी, संपूर्ण पाप समूह का समन कर दे। केवल तुलसी जी का दर्शन हो जाए और स्पर्श मात्र से वह देह को पवित्र कर देती हैं। स्पृष्टा वपुष्पावनी, इसलिए हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत अनुग्रह किया हम सबके ऊपर। उन्होंने विचार कर लिया कि ये मलमूत्र के भांड हैं, इनको कितना ही धो मांजो, इनको मिट्टी जल से चाहे जितना पवित्र करने का प्रयत्न करो, ये मलमूत्र के भांड हैं, ये पवित्र हो ही नहीं सकते। तो भगवत सेवा के योग्य ये कैसे बने? तो उन आचार्यों ने करुणा करके कंठ में तुलसी विराजमान कर दी। स्पृष्टा वपुष्पावनी, स्पर्श मात्र से देह को पवित्र कर देती है। ऐसी वैष्णव परंपरा भी है जहाँ निरंतर तुलसी धारण नहीं करते। श्री रामानुज संप्रदाय की एक परंपरा में वे लोग सतत तुलसी धारण नहीं करते, लेकिन जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, अर्चन करेंगे तो तुलसी की माला पहन लेंगे। तो एक उस परंपरा के आचार्य महानुभाव से दास ने जिज्ञासा की कि महाराज जी आप लोग सतत नहीं धारण करते हैं और जब अर्चन में जाएंगे तो तुरंत तुलसी धारण करके भीतर प्रवेश करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बिना तुलसी धारण किए भगवत विग्रह का स्पर्श अत्यंत निषिद्ध है। बिना तुलसी कंठ में धारण किए भगवत विग्रह का स्पर्श करने से भगवत विग्रह को भग्न करने का अपराध लगता है। सतत तुलसी हम इसलिए धारण नहीं करते हैं कि तुलसी के प्रति हमारा अतिशय पूज्य भाव है। स्नान आदि के समय तुलसी का जल पैर में न जाए, अशुचि अवस्था में हम न धारण करें, इसलिए ऐसा करते हैं। ऐसा उन्होंने समाधान किया। शास्त्र में तुलसी को सतत धारण करने की आज्ञा है। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद्विहीनोपि विष्णुद्रोही भवेन नरः, स्कंद पुराण में लिखा है। द्विजाति को, ब्राह्मण को जैसे निष्ठा पूर्वक यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए, यज्ञोपवीत टूट जाए, खंडित हो जाए तो जब तक दूसरा न बदले तब तक उसे कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, चलना फिरना भी नहीं चाहिए। ऐसे ही वैष्णव को सतत तुलसी धारण करनी चाहिए। आधे क्षण के लिए भी तुलसी से विमुख हो जाए तो विष्णुद्रोही भवेन नरः, भगवत द्रोही हो जाता है। ले स्नान के समय जल जाएगा पैर में, कहते उसकी भी बात नहीं। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशयः। भगवान व्यास कह रहे हैं स्नान के समय जिसके शरीर पर तुलसी का एक दाना भी रहता है, जब वह स्नान करता है तो तुलसी का स्पर्श करके जल जब शरीर पर पड़ता है तो इस भूमंडल के अशेष तीर्थों में स्नान का पुण्य उसे प्राप्त हो जाता है। और साधन में तो कुछ करना भी पड़ेगा, प्रसाद पाने में तो क्या श्रम है। प्रसाद तो हम लोग भले ही प्रसाद निष्ठा अभी न जगी हो, पदार्थ निष्ठा ही हो, पर पदार्थ निष्ठा कहते नहीं, उसको प्रसाद के नाम पर सवेरे से शाम तक कुछ न कुछ पाते रहते हैं।
हमारे यहाँ ब्रजवासी कहते हैं ना परसदिया भगत, तो केवल प्रसाद में ही जिनका प्रेम है, परसदिया भगत। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो परसदिया भगत होते हैं, उनको चरणामृत दो उतनी प्रसन्नता उनको नहीं होती है। प्रसाद दो तो एक हाथ से ले लेंगे, फिर उसको पोंछ के दूसरे हाथ से भी ले लेंगे, दूसरों के नाम का भी ले लेंगे। वो चरणामृत में कम प्रेम होता, उनको प्रसाद में ज्यादा प्रेम होता। गांव में पुजारी लोग चरणामृत में भी थोड़ी मिश्री मिला देते हैं। कोई मिश्री इसलिए मिला देते हैं कि बच्चे वो मिश्री की मिठास में वो चरणामृत भी प्रेम से ले। तो हमारे जैसे लोग तो परसदिया भगत ही हैं, और तो कोई भक्ति की निष्ठा है नहीं। तो कंठ में जिसके तुलसी विराजमान है और भगवान को निवेदित जो प्रसाद है, भगवंत भुक्त अवशिष्ट भगवद अधरामृत, उसको प्रसाद को जब कोई जीव ग्रहण करता है तो महाराज जी लिखा है, सिक्थे सिक्थे तु लभिते बाज मेधि फलम मुने। प्रसाद तुलसी कंठ में धारण है और वह प्रसाद सेवन करता है तो एक एक कण में अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त होगा। इसलिए भगवत शरणागत होने के बाद, वैष्णव होने के बाद, फिर भगवान के प्यारे भक्त महाभागवत धर्मराज यमराज चित्रगुप्त को कह देते हैं कि इसका खाता फाड़ के फेंक दो। क्यों? बोले अभी इसके पाप तो सब खत्म हो गए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। ठाकुर जी ने वचन दे दिया, स्वीकार कर लिया, इसको अंगीकार कर लिया। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम पापानां वा शुभानां वा बधारहाणां प्लवंगम कार्यम कारुण्यमारेण न कश्चिन नापराध्यति। भगवान ने इसे अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, सब नष्ट हो गए। और अब पुण्य इसका इतना बढ़ गया, अब कितनी बार प्रसाद पाएगा, एक एक कण पर एक एक अश्वमेध का पुण्य मिलेगा। तो बोले इसका खाता कोई लिख ही नहीं पाएगा, कोई कंप्यूटर भी लिख नहीं पाएगा, कोई मशीन भी नहीं लिख पाएगी, खाता ही फाड़ के फेंक दो, खत्म। और इन पुण्यों के फलों का भोग भी वैष्णव करना नहीं चाहता। भगवान की शरण में जाने से संचित भस्म हो जाता है, क्रियमाण पवित्र हो जाता है, क्योंकि प्रातिकूल्य सवर्जनम, क्रियमाण पवित्र हो जाता है। और उस क्रियमाण कर्म का बंधन इसलिए नहीं रहता कि वह करने के बाद कृष्णार्पणमस्तु, भगवान को अर्पित कर देता है, अपने पास रखता ही नहीं, भगवान को अर्पित कर देता है, कृष्णार्पणमस्तु। तो क्रियमाण कर्म का बंधन उसे रहता नहीं, और भगवत कृपा के बल से, भगवान की अपूर्व दया करुणा का अनुसंधान करते हुए प्रारब्ध का भोग प्रसन्नता पूर्वक वह कर लेता है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, आत्मकृतम विपाकम इति मत्वा भुंजानम, अपना किया हुआ है। अब अनंत जन्मों का संचित नष्ट हो गया, क्रियमाण का बंधन रहा नहीं, बचा केवल प्रारब्ध। और उसमें भी भगवत कृपा से 20 वर्ष 25 वर्ष या 50 वर्ष या 60-70 वर्ष का भोग लिया, और अब कितना भोगना बाकी है, कितने क्षण भोगना होगा, इसका किसी को ज्ञान नहीं है। हो सकता अभी जैसी आराम हो जाए, क्या ठिकाना है। तो जब इतना अब तक भगवत कृपा से भोग लिया तो शेष भी भोग लेंगे। बस हे नाथ, एक प्रार्थना है,
स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। स्वर्ग नरक अपवर्ग माने मोक्ष, न इनकी आशा है न इनसे डर है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। जहां राखो तहां रहो मान सुख राशि। बस एक प्रार्थना है, देहु दया कर दान न भूलो केली को। भगवत बलित तमाल बिलो कहूं वेली को। ऐसी कृपा करो कि ब्रजवास करते हुए श्री राधा कुंड के तट पर विराजमान होकर के निरंतर श्री राधा माधव की नित्य केली का स्मरण करता रहूं। भगवत बलित तमाल बिलो कहूं वेली को। श्याम तमाल से कनक बेली श्री राधा आलिंगित हो रही हैं। उनकी दिव्य झांकी, एक प्राण दो देह की झांकी हम करते रहें और फिर हमें न किसी की आशा है और न किसी से भय है। भगवान का भक्त उसके प्रारब्ध का भी क्षय अन्य जीवों की अपेक्षा बड़ी सहजता से हो जाता है। हमने ऐसे भी इतिहास पूज्य गुरुजनों के मुखारविंद से सुने हैं कि भगवान के शरणागत भक्त का प्रबल प्रारब्ध उसका भोग स्वप्न में हो गया। प्रत्यक्ष में उसे भोगना था, स्वप्न में भोग लिया। एक सत्य घटना पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हमने सुनी थी। सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के मुखारविंद से। राजाओं का जमाना था, रियासती राज्य, राजाओं का राज्य था उस समय। तो एक बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे। प्रकांड विद्वान थे ज्योतिष शास्त्र के, और ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र हैं। ज्योतिषा मयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। षट शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र भगवान का नेत्र है। ठीक से ज्ञान हो तो वह त्रिकालदर्शी हो सकता है ज्योतिष के प्रभाव से। तो वो जो दैवज्ञ ज्योतिष शास्त्र के विद्वान ब्राह्मण थे, उन्होंने अपना जन्म चक्र देखा और उनको बहुत ही पीड़ा हुई कि अरे अब क्या होगा। मैं राज सम्मान से सुशोभित, राजा हमको प्रणाम करता, हमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता, बड़ी भारी हमारी प्रतिष्ठा है। और हमारे ग्रह गोचर में स्थिति ऐसी है कि जो राजा हमारा अत्यधिक आदर सत्कार करता है, वह किसी मिथ्या अभियोग में हमको अपमानित करेगा, हमारी संपत्ति को छीनकर देश से निष्कासित कर देगा और बहुत भारी अपमान करेगा। हो सकता मुंह काला करके गधे पर बिठा के हमको बाहर निकाल दे। आप लोग कहेंगे कि ऐसा भी ज्योतिष में लिखा रहता है कि गधे पर बिठा के निकाल देंगे। शंका किसी के मन में हो सकती है। इसके लिए हम एक बात आपको निवेदन करते हैं। हमारे मेरुदंड में स्पाइनल कहते हैं, उसमें बड़ी पीड़ा थी। डॉक्टर लोगों ने बताया था एमआरआई होने से कि L4, L5 और S1 ये सब तुम्हारे गड़बड़ हो गए हैं और अब ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। दिल्ली में कई जगह दिखाया था, बहुत पीड़ा थी। इतनी पीड़ा की श्वास लेने में भी पीड़ा होती थी, लवशंका जाने में भी सहारा लेना पड़ता था, ऐसी स्थिति हो गई। दिल्ली में भी गए, डॉक्टरों को दिखाया। एक महापुरुष
रेवासा महाराज हमको मिले। उन्होंने कहा कि महाराज ऑपरेशन मत कराना, एक ज्योतिष के विद्वान हैं नाथद्वारा के निकट, उनसे आप पूछ करके तब ऑपरेशन करो, वो कह दें तो कराना, नहीं तो नहीं कराना। तो वो नाथद्वारा जब जाते हैं तो भीलवाड़ा के निकट एक कारोई गांव है, वहाँ एक भृगु संहिता के विद्वान हैं पंडित श्री नाथू लाल जी दादीज हैं, गौड़ है, नाथू लाल जी गौड़। तो उनके पास हम गए, पहली बार ही गए थे। तो उन्होंने हमको बोला, बात तो बहुत कुछ बोली, लेकिन उन्होंने जो हमको बोला, उन्होंने कहा कि आप ऑपरेशन कराना नहीं, अंग्रेजी दवा लेना नहीं, थोड़ी मोड़ी देसी दवा ले लो, कुछ मालिश वालिश कर लो, ठीक रहेगा, कोई चिंता नहीं। अभी इतने समय का ये कष्ट है, ये रहेगा ही। ऑपरेशन कराएंगे तो और कष्ट बढ़ जाएगा और समाधान नहीं होगा जीवन भर के लिए। आप इतने समय के बाद एक स्थान में होंगे जहाँ बहुत जंगल होगा, बहुत गाय होंगी, और वहाँ आप निवास कर रहे होंगे। तो उस समय एक वृद्ध व्यक्ति आएगा और कोई देसी जड़ी आपके कमर में दवाई बना करके बांध देगा, उससे आप ठीक हो जाएं। तो उसने जो पंडित जी ने बताया था ना, उसको लिख लिया गया। तो हमारे मन में आया कि ये कैसे बोल रहे हैं, कैसा आएगा, आदमी आएगा कमर में दवाई बांधेगा ठीक हो जाएगा। तो हमने पूछा, बोले हाँ इसमें ग्रंथ में लिखा है कि ऐसे ऐसा योग है, एक व्यक्ति आएगा उससे ये रोग ठीक होगा। और हम पथमेड़ा में गोदुग्ध कल्प कर रहे थे, उसी समय एक 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति आया और उसने कुछ जड़ी बूटी कूट करके भेड़ के दूध में पका करके कमर में मेरे बांध दिया, हम ठीक हो गए। तो उसके पहले हमको ज़्यादा विश्वास नहीं था, फिर हमको लगा कि नहीं नहीं, उन्होंने जो कहा था वो तो सब सही हो गया। तो इसलिए ये बात हमने अपनी प्रमाण की बात इसलिए कह दी कि जिसमें आप लोगों को किसी के मन में ऐसी शंका न हो। तो वे बहुत व्याकुल हो गए कि अब क्या होगा, मैं अपने सम्मान को कैसे बचाऊं। भक्त हृदय थे, पर थे गृहस्थ ब्राह्मण। हम लोग नाम मात्र के लिए हमारे जैसे लोग विरक्त हो गए हैं, साधु हो गए हैं, पर पद प्रतिष्ठा लोकेशना का त्याग नहीं कर पाए हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिर बेचारा गृहस्थ व्यक्ति कैसे त्याग पाए। वो दुखी होकर अपने गुरु महाराज के पास गया। गुरु जी परम भागवत थे। कहा गुरुदेव हमारी रक्षा करो, ऐसा ऐसा दुर्योग है और जीवन भर की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। तब उन्होंने कहा कि तुम मानोगे तो है नहीं, यदि तुम मानो तो हम तुमको बताएं। महाराज अब तो हम जरूर मानेंगे। तो बोले अब ज्योतिष का काम, कर्मकांड का काम कुछ समय के लिए बंद कर दो और केवल एकांत में 5-6 महीने बाद वो योग आने वाला है। तो अब जितना समय योग में बाकी है उतना समय केवल एकांत में बैठकर हरि नाम करो, केवल और केवल हरि नाम करो। कोई मंत्र तंत्र जब कुछ नहीं, केवल हरि नाम। भगवत शरणागति के भाव का दृढ़ चिंतन करते हुए केवल हरि नाम करो बैठ करके, और भगवान सब मंगल करेंगे। और वो करने लगे हरि नाम, निर्विघ्नता पूर्वक हरि नाम साधन संपन्न हुआ। और जैसे ही वह योग का समय आया, एक दिन हरि नाम करते करते थोड़ी सी तंद्रा आई, निद्रा आई, और उसी में उन्होंने देखा कि सिपाही आए हैं और उन्होंने हमको पकड़ लिया। मैं चिल्लाता रह गया, जबरदस्ती हथकड़ी डाल दी और बड़े अपमानित तरीके से हमको राज दरबार में लाया गया। और राजा ने हमको दुष्चरित्र हो ऐसा आरोप लगा करके, और वो कोई षड्यंत्र था, पंडितों का ही षड्यंत्र था, किसी स्त्री को खड़ा कर दिया और उसने अभियोग लगा दिया। और राजा ने कहा मैं तो तुमको बड़ा विद्वान, बड़ा सदाचारी समझता था, फिर तुम इतने घृणित कर्म करने वाले हो। ऐसे ब्राह्मण का मुंह नहीं देखना, उसका मुंह काला करो, गधे पर बिठाओ, जूतों की माला पहनाओ, निकाल दो हमारे नगर से बाहर, संपत्ति छीन लो, अन्य गरीब ब्राह्मणों में बांट दो। राजा आज्ञा हो गई।
मैं बार बार वो ब्राह्मण कहते रहे कि हमारी सुनी तो जाए, पता तो लगाया जाए, मैं निरपराध हूं, कुछ नहीं सुना, नहीं कुछ सुनना नहीं। निर्णय गधे पर बिठाकर उनको घुमाया जा रहा था और इस सपना देख रहे थे वो स्वप्न, और उनको पसीना पसीना हो गया। जैसे नेत्र खुले उनके, नेत्र कैसे खुले, वो गधे पर बैठकर अपने घर के दरवाजे पर आ गए। तो उनकी पत्नी बच्चे तमाशा देख रहे थे तो वो घबरा गई ज़्यादा, यहाँ तो और ज़्यादा हमारी प्रतिष्ठा गई। पत्नी के सामने हर पुरुष अपनी प्रतिष्ठा बचा के रखना चाहता है, तो घबराहट के मारे उनकी निद्रा भंग हुई। तो देखा हाथ में तो माला है, अरे पसीना पसीना हो गया, हम तो स्वप्न देख रहे थे। दौड़कर गुरु महाराज के पास गए, गुरुदेव भगवान और ऐसा होने वाला देखो अभी भी हमको दिखा। बोले वो प्रत्यक्ष में होने वाला था, वो भगवत शरणागति की महिमा से, महा महा महिमामय सर्व समर्थ भगवान नाम की महिमा से प्रत्यक्ष प्रारब्ध का भोग स्वप्न में कट गया और अब तुम निश्चिंत होकर हरिनाम। बोले बस तो अब ना आगे कर्मकांड करना है न ज्योतिष करना है, अब तो हरिनाम ही जीवन पर्यंत करना है। और उन्होंने जीवन पर्यंत हरिनाम किया। ऐसा इतिहास हमारे पूज्य गुरुदेव ने सुनाया था। आर्तप प्रपन्न और द्रप्तप प्रपन्न दो कोटियां वैष्णवों की हैं। उनमें द्रप्तप प्रपन्न तो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, प्रसन्नता पूर्वक भोग कर लेते, प्रारब्ध क्षय की प्रार्थना नहीं करते। किंतु जो आर्त भक्त होते हैं, जिन्हें भगवत विश्लेष भगवत विरह क्षणार्ध के लिए भी सहन नहीं होता है, वे अत्यंत आर्त भाव से जब ठाकुर जी को पुकारते हैं तो ठाकुर जी सोचते इसका तो बहुत प्रारब्ध है, अभी तो कई जन्म भी लेना है इसको। वो कहते ये तो बेचारा तब तक इसके प्राण रहेंगे ही नहीं। तो जैसे आजकल वो वीडियो कैसेट चलाने वाले लोग एक रिमोट हाथ में रखते हैं और उस रिमोट के बटन को दबाते हैं तो रील जल्दी जल्दी घूम जाती है, ऐसे ही ठाकुर जी के हाथ में वैष्णवों का रिमोट कंट्रोल रहता है। वो बटन दबा के उनकी सारी प्रारब्ध की रील को 1 मिनट में सब खत्म करके और उनको अपने आजानुलंबित भुजाओं से, चंदन चर्चित भुजाओं में भरकर अपना हृदयाश्लेष भगवान प्रदान करते हैं। तो भैया ये वैष्णव धर्म अतिशय दिव्य है। ऐसे भी वचन पुराणों में आए हैं, इतने जन्म तक गणेश जी की भक्ति, इतने जन्म तक शक्ति की भक्ति, इतने जन्म तक सूर्य की भक्ति, फिर इतने जन्म तक शिव जी की भक्ति, और जब सबकी भक्ति पूरी हो जाती है तो अंतिम जन्म में भगवत शरणागति, भगवत भक्ति प्राप्त होती है। आप सबकी सब उपासना साधना हो गई, अब तो बस ये आखिरी है, ऐसा अपने मन में अनुभव करना है। वैष्णव के पुण्य की सीमाएं नहीं, अनंत पुण्य है वैष्णव। 64 प्रकार की जो भक्ति श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताई है, उनमें कार्तिक मास का विशेष आदर यह भी भक्ति है। ऊर्जादरो विशेषेण, विशेष रूप में कार्तिक मास का आदर। हम बड़े भाग्यशाली हैं। परसों महाराज जी का दर्शन हुआ, और दर्शन हुआ तो श्री गोस्वामी जी की समाधि को दंडवत किया। श्री राधा कुंड के उत्तर तट है ना, उत्तर तट पर बैठने का अवसर मिला, और वहां महाराज जी ने कृपा पूर्वक राधा कुंड के तट पर बैठ करके ही वर्णन किया कि अखिल भुवन कोश ब्रह्मांड में प्रकृति मंडल के उस पार, विरजा के उस पार अवस्थित होने के कारण वैकुंठ धन्य है। किंतु वैकुंठ में भगवान की जन्म लीला नहीं होती, इसलिए वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी, बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। ये मधुपुरी, यह ब्रजमंडल
वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। क्यों? बिना श्री कृष्ण की कृपा के यहां कोई एक क्षण नहीं रह सकता। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो यह है कि जो यहां रहता है प्रतिक्षण कृपा उस पर बरसती रहती है, एक क्षण भी कृपा से वंचित नहीं रहता। एक अर्थ तो यह है। दूसरा अर्थ है कि कोई अपने अशेष जन्मों के पुण्यों को दांव पर लगा दे और पूरी तन मन धन जन सब शक्ति को लगाकर ब्रजवास करना चाहे और पुण्य की शक्ति को का भी विनियोग करे, किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा न हो तो यहां कोई एक क्षण नहीं रह सकता। हम वृंदावन में देखते हैं बड़े बड़े सेठ साहूकार जिनके पास बहुत धन है वो फ्लैट खरीद लेते हैं अथवा कोठी बना देते हैं। पुराने सेठ तो कोठी बना देते थे और सफाई करने के लिए एक नौकर को कर्मचारी को रख देते हैं झाड़ू पोंछा के लिए, सफाई के लिए। तो महाराज जी वो झाड़ू पोंछा करने वाले को तो वृंदावन वास मिल जाता बिहारी जी की राधा रानी की कृपा से, और जिसने लाखों रुपया खर्च करके शायद करोड़ रुपए भी खर्च करके जिसने बनाया है वो कहीं बंबई कलकत्ता में ही मर जाता है, वो यहाँ आ ही नहीं पाता। बिना कृष्ण प्रसादे न क्षण में एकम न तिष्ठति। मधुपुरी इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वैकुंठा जनिता वरा, मधुपुरी ही कहा था ना आपने। वैकुंठ से श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि अजन्मा की जन्मस्थली है। जो अजन्मा हैं वे मथुरा में प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, इसलिए जन्म के कारण मथुरा श्रेष्ठ है। किंतु मथुरा में केवल जन्म ही हुआ, भगवान की शैशव लीलाएं श्री गोकुल में हुई। श्री गोकुल श्रेष्ठ है और वहां से भी श्रेष्ठ वृंदावन है क्योंकि गोचारण लीला यहां सभी रसों के उपासक भक्तों को भगवान ने आह्लाद दिया। माधुर्य रस की भक्ताएं ब्रजांगनाओं को तो कृपा प्रसाद भगवान ने प्रदान किया ही, उनके मनोरथों को तो पूर्ण किया ही। सख्य भाव के उपासक सखाओं के साथ गोचारण करके माखन चोरी आदि करके भगवान ने उन्हें भी कृतार्थ किया। शांत रस के उपासकों को भी कृतार्थ किया। वेणु गीत में वर्णन है कि भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं तो वो पक्षी प्रायो बतांग बिहगा मुनयो बनेस्मिन, वो सब शांत रस के भक्त हैं। वो आंख बंद करके ऐसे लगता मानो समाधि में चले गए। उनको भी भगवान ने सुखी किया। दास्य भाव के भक्तों को भी सुखी किया, सख्य भाव के भक्तों को सुखी किया, वात्सल्य भाव के भक्तों को सुखी किया, माधुर्य भाव के भक्तों को भी सुखी किया। शांत दास्य सख्य वात्सल्य और माधुर्य पांचों रसों के उपासक भक्तों को कृतार्थ किया भगवान ने। पर इन समस्त रसों में रसराज माधुर्य है क्योंकि समस्त रसों का अंतर्भाव माधुर्य रस में हो जाता। भगवान ने उनको कृतार्थ किया। वो मधुर महामधुर रस की लीला वृंदावन में ही हुई। वृंदावन का मतलब आप लोग अपनी बुद्धि में यह मत लगा लेना कि जहाँ ठाकुर जी ने हमको निवास किया वही वृंदावन है। ये जो है ना जहाँ आप लोग बैठे हैं इसको ब्रजभाषा में कहें तो ये खाटी वृंदावन है, विशुद्ध वृंदावन है। हम लोग वृंदावन में बैठे, ये वृंदावन है। पंच योजन में वास्ती बनम में देह रूपकम, और देह रूपक जो वन है वृंदावन है, सबसे विराट वन वृंदावन है। और उसके मध्य में मध्य गोवर्धन स्थितम, मध्य में जैसे कमल पुष्प के मध्य में कर्णिका हो ऐसे मध्य में श्री गिरिराज जी विराजमान। आप लोग तो विशुद्ध वृंदावन वासी। हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध है महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड
डगर बुहारत सांवरो जय जय राधा कुंड। यहां तो श्री कृष्ण श्याम सुंदर अपने पीतांबर से सोहनी सेवा करते हैं। प्रिया जी आ रही हैं, छड़ी छत्र चमर आदि लेकर के सखियां चल रही हैं, जय जयकार करते हुए वृषभानुनंदिनी की सखियां, सहचरियां, मंजरियां सब आ रही हैं। और उस झांकी का अवलोकन करके रसिक शेखर श्याम सुंदर अपने पीतांबर से मार्ग को गुहार रहे हैं। जय हो जय हो जय हो, पधारो। ऐसी मधुराति मधुर लीला जहां हो वह तो विशुद्ध वृंदावन, ऐसा वृंदावन स्वरूप। तो वृंदावन के मध्य में श्री गिरिराज जी श्रेष्ठ हैं और गिरिराज जी में भी श्री राधा कुंड श्रेष्ठ है। इसलिए केवल इस भूमंडल में नहीं, अनंतानंत ब्रह्मांडों में सर्वोत्कृष्ट सर्वोपरि ब्रजभूमि है। ब्रजभूमि में उत्कृष्ट श्री वृंदावन है, वृंदावन में उत्कृष्ट श्री गोवर्धन है और श्री गिरिराज जी में सर्वोपरि श्री राधा कुंड है। आप लोग जो 1 महीना तक यहाँ नियम सेवा कर रहे हैं, कथा कीर्तन सत्संग में अपने समय को सार्थक कर रहे हैं, आपके पुण्यों की सीमा नहीं है। भगवान शेष का आवाहन किया जाए और कहा जाए महाराज ये सब राधा कुंड में जो नियम सेवा कर रहे हैं, आपको तो भगवान ने 1000 मुख दिए हैं, आप कृपा करके इनके सौभाग्य का वर्णन करें, तो शायद शेष भगवान भी मौन हो जाएंगे, कहेंगे भैया हरि नाम करो, हम इनके पुण्यों का वर्णन नहीं कर सकते। आप सबके सौभाग्य को देखकर हम बहुत आह्लादित हैं। आप सबके चरणों में हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। आप सब हमारे प्रणम्य हैं। सही बात है, महाराज जी ने जो कुछ कहा, भाषा संस्कृत बड़ी मधुर, पर न हम संत हैं, न भक्त हैं, न आचार्य हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर लिया है, लेकिन ब्राह्मणों के जो लक्षण हैं वो भी हम अपने आप में नहीं देखते हैं। आप सब संत वैष्णव अनुग्रह करें, दासानुदास बन करके यह जीवन व्यतीत हो जाए। कोई साधन बने या न बने, मृत्यु के अंतिम क्षण में आप जैसे रसिक वैष्णवों की दृष्टि इस पतिताधम के ऊपर पड़ती रहे और संत हरिनाम कीर्तन करते रहें, तब अंतिम श्वास लें। बस इन संतों की चरण रज का ही आश्रय है। सावाग्यया तस्य गुणान गृणीते, सावाग्यया तस्य गुणान गृणीते, करौ च तत्कर्म करौ मनश्च, स्मरेद वसंतम स्थिरजंगमेषु, शृणोति तत्पुण्य कथास्य कर्णः, शिरस्तु तस्योभय लिंगमानमेत, तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः, अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानां, पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम्। अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानां, पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम्। विष्णोः अथ तज्जनानांच नित्यम पादोदकम भजन्ति। भगवान और भगवदीय जन वैष्णवों के चरणामृत को जो नित्य लेते हैं उनका देह धारण करना सफल है। ऐसा श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी का भाव है। हम तो इसी को प्रमाण मानकर इतना ही कर लेते हैं। स्नान के बाद नित्य जगन्नाथ जी का अधरामृत, श्री जगन्नाथ जी का निर्माल्य, नित्य मुख में ब्रजरज और नित्य भगवत चरणामृत और संतों का चरणामृत, ये 4 चीज ले लेते। बस सोचते बस इतने से ही उतर जाएंगे पार, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा मन में भाव आता है। तो श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ऐसे पवित्र मास में दर्शन हुआ। अभी कुछ लोगों ने हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगाना शुरू किया, तो अभी जो लोग मानते उनको तो मैंने प्रार्थना करके मना कर दिया कि डॉक्टर न कहो। हमारे महात्मा बड़े सरल होते हैं महाराज जी। हमारे सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी थे श्री रामचंद्र दास जी। अब संतों हैं, संतों में एक परिहास की बात कह दें तो उनको एक रोग हो गया, अंडकोश वृद्धि हो गई, क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको, जो कुछ भी कहते हैं।
तो वो अयोध्या जी गए, डॉक्टर कहते तो ऑपरेशन कराओ। तो भारतवर्ष के एक बहुत अच्छे विद्वान श्री लक्ष्मण किलाधीश जी, श्री स्वामी सीताराम शरण जी महाराज रामायणी जी, उनके पास गए। वो बहुत मानते थे पुजारी जी को। तो उन्होंने, एक बहन वहाँ रहती थी, बहुत अच्छी विदुषी हैं वाल्मीकि रामायण की, तो उन्होंने कहा कि पुजारी जी अब तो सुनीता जी डॉक्टर हो गई हैं, कोई इतने भोले महात्मा, बोले चलो पता नहीं कौन कौन डॉक्टर स्पर्श करेगा, बोले थोड़ा देखो हमारी बीमारी को, तुम ही ऑपरेशन कर दो। उनको ये पता नहीं था कि ऑपरेशन वाला डॉक्टर अलग होता है और पीएचडी वाला डीलिट वाला डॉक्टर अलग होता है, उनको पता नहीं था। तो वो महापुरुष हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अरे बोले हम बीमार हैं, आप हंस रहे हो? अरे ये डॉक्टर नहीं है ऑपरेशन करने वाले, ये तो एक डिग्री होती है। मन में कभी ऐसी बात नहीं आई। व्याकरण वेदांत साहित्य से आचार्य गुरुदेव की आज्ञा से किया। महाराज जी बोले पीएचडी कर लो तो अच्छा है, किसी विषय पर शोध प्रबंध लिखो। हम खाक चौक में थे उस समय, पहाड़ी बाबा। तो हमने महाराज जी से, महाराज बोले उनसे पूछ लेना। तो महाराज जी से हमने पूछा क्या होती है डॉक्टरेट, क्या होता है डॉक्टर, समझाया उनको। बोले वो मरते नहीं है क्या? मरते तो हैं। ए बकबक करता है, बकबक करता है, ऐसे बोलते थे वो, बकबक करता है, राम राम कर, राम राम कर, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, क्या करोगे, सब भूलेगा, कल्याण केवल हरिनाम से होगा, हो गया, खत्म करो, बंद करो। मन से बात निकल गई। पर महाराज जी ने कहा था तो उसका प्रतिफल यह हुआ कि चित्रकूट में जो विश्वविद्यालय है उसके दीक्षांत समारोह में मैंने बिल्कुल मना कर दिया। फिर उन्होंने डीलिट की उपाधि उन्होंने दी। राष्ट्रपति जो वर्तमान राष्ट्रपति महानुभाव हैं, तो उन्होंने कहा, श्री स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज ने, उन्होंने कहा आपकी डिग्री, आपके नाम का प्रस्ताव सब निकलवा कर हम भेज चुके हैं, विश्वविद्यालय स्वीकृत कर चुका है, राष्ट्रपति स्वीकृत कर चुके हैं और वो प्रमाण पत्र भी चप बन के तैयार है, आपको आना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत रुष्ट हो जाएं। तो हमने कुछ लिखा नहीं, हम लिखे पढ़े नहीं हैं, पर झूठी हमको डीलिट की डिग्री मिल गई। लोगों ने डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम तो मरीज हैं, भवरोग ग्रसित जीव हैं। ए संत चरणामृत, संत अधरामृत, गुरु चरणामृत, गुरु अधरामृत, श्री हरिनामामृत, यही इस भवरोग का रसायन है, इसकी औषधि है। द्वाराचार्य जगत गुरु भी हम नहीं हैं। लिखते जरूर हैं लोग, और लिखते हैं तो वो ठीक है। हम खाक चौक में थे, उसके बाद मलुक पीठ के सेवा प्राप्त हुई, तो महाराज जी ने कुछ भक्तबलवा टिप्पणी थी, सबसे पहले भक्तमाल पर जो लिखा था वो समाप्त हो गई थी पुस्तक। तो पुरानी कुछ फाइलें थी, उनमें से पेजों को छांट करके बाइंडिंग करके 10 प्रतियां बनाई थी। उसमें एक प्रति हमारे लिए भी उन्होंने रखी। तो हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी कुछ आशीर्वाद आप लिख दें इस पर। तो महाराज जी ने ऊपर लिखा श्री हरि शरणम, फिर उसके नीचे लिखा श्री मलूक पीठाधीश्वराय राजेंद्र दासाय राति ददाति राति सादरम राति। अपना नीचे भाव, अपना नाम महाराज जी ने लिख दिया। तो मैंने प्रार्थना की, मैंने कि महाराज जी हम तो मलुक पीठाधीश्वर हैं नहीं, तो भी तो खंडर है, और हम तो खाक चौक में महंत थे, वो पद भी छोड़ दिया, तो हम तो मलुक पीठाधीश्वर है नहीं। आपने लिख दिया इसमें मलुक पीठाधीश्वराय राजेंद्र दास आए शाशीर्वादम राति, ऐसा आपने लिख दिया। तो महाराज जी बोले अब पता नहीं क्यों लिख दिया,
अदृष्ट की प्रेरणा से लिख दिया, कैसे लिख दिया, भगवान की इच्छा से लिख दिया। लिखने के बाद उसको काटने की पद्धति नहीं, लिख दिया तो लिख दिया, हम कुछ नहीं बोले। ये लिखा होगा शायद 96-97 में, नहीं 96-97 में नहीं, 2001 में शायद लिखा, 2000 या 2001 में लिखा होगा। और जब 2007 में, 2006 में महाराज जी भगवत धाम चले गए, और 2007 में जब मलुक पीठ का पुनः निर्माण हुआ और उसकी प्रतिष्ठा महोत्सव में भारतवर्ष के सभी पूज्य आचार्य, जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हरियाचार्य जी महाराज उस समय थे, बड़े विद्वान थे, अयोध्या जी से वो पधारे। सन्यासी, वैष्णव, उदासी सभी अखाड़ों के, चतुर्थ संप्रदाय के सभी महानुभाव आए थे। और दूसरे दिन मलुक दास जी की जयंती उत्सव था, तो उन्होंने कहा, रात्रि में हमको बुलाया और बुला करके कहा कि कल मलुक दास जी की जयंती है, इस समय भारतवर्ष का संपूर्ण समाज यहाँ उपस्थित है, तो हम सबका मन है कि कल हम आपको द्वाराचार्य जगत गुरु पद पर अभिषिक्त करें। मैंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अस्वीकार किया। महाराज जी पहले से कोई विचार नहीं था, आप सब संत कृपा करते हैं, सभी संप्रदायों में समान भाव से लोग बुलाते हैं, इसलिए मन में भाव था कि एक बार आप लोगों की चरण यहाँ पड़ जाएं। हमने तो महंत बनेंगे यह विचार भी अपने दिमाग में नहीं रखा है। आप कृपा करके क्षमा करें, हम इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। इतना सुनते ही सब नाराज हो गए, बोले गाड़ी तैयार करो, अभी भाग के हम यहाँ से जाते हैं, न तुम्हारे उत्सव में रहेंगे न प्रसाद पाएंगे। पूरे समाज का अपमान कर दिया आपने। हमने कहा, दूसरा बहाना बनाया कि वृंदावन का साधु समाज नाराज हो जाएगा कि आपने पहले हमको बताया नहीं, कार्ड में छपाया नहीं और ऐसे अकेले अकेले कर लिया। बोले समाज तो सब हमारा अपना ही है, कि फूलडुलदास जी महाराज को बुला लिया और संतों को बुला लिया, आप लोग, अरे बोले हम तो सब समाज वृंदावन का तो महाराज जी के साथ है। तो वो अनिच्छा पूर्वक वह भी हो गया। इसलिए सब भगवान की इच्छा है, हम तो दासानुदास हैं महाराज जी, हम कुछ नहीं हैं, आप कृपा करें। भगवान समस्त प्रकार की अविद्या माया जनित उपाधियों से विनिर्मुक्त हैं, और भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए जीव को भी मायोपाधियों से विनिर्मुक्त होना पड़ता है। न जाने कितनी अविद्या जनित उपाधियां जन्म से हमने ले रखी हैं, उनको हम हटा नहीं पाए। हम अमुक हैं, हम तमुक हैं, अमुक जाति के हैं, अमुक संप्रदाय के हैं, ये सब तो हटा नहीं पाए, और ऊपर से न जाने कितनी उपाधियां हम लोगों ने अपने ऊपर लाद ली। कैसे ठाकुर जी के चरणों की ओर बढ़ेंगे? लोक व्यवहार में जो बात चलती है वो भले ही चले, पर आप सब संत ऐसा आशीर्वाद दें कि हम हृदय से एक ही बात मानते रहें मृत्यु के क्षण पर्यंत, कि हम केवल और केवल गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदासा, केवल श्री ठाकुर जी के चरण कमलों के दास, उनके भी चरण कमलों के दास, उनके भी चरण कमलों के दास हम हैं। हमारे गुरु भाई ने ये बात कही कि कुछ पंक्तियां लिखी, उनको आप कहिए, लेकिन आज तो उसमें ही समय पूरा चला गया। एक दो श्लोक हम बोल देते हैं बस केवल। श्री जब अपने राम यहाँ आए थे उस समय ऐसा दिव्य चरित्र समझ में नहीं आया था, लेकिन संक्षिप्त जो भेजा उसको पढ़ा तो पढ़ करके हमारा रोम रोम पुलकित हो उठा। ऐसी दिव्य विभूति उनके संबंध में कुछ शब्द लिख करके आप उनके चरणों में शब्द सुमनांजलि समर्पित करना चाहिए। श्री विष्णुपाद पंडित श्रीमद अनंत दास बाबा जी महाराज महोदया नाम संक्षिप्त जीवन परिचय जो लिखकर भेजा था, उसी के अनुरूप ये कुछ इसको कहेंगे तुकबंदी। विष्णुपाद विभूषस्य प्राज्ञवावा महात्मनः श्रीमदनंत दासस्य संक्षिप्तम जीवनामृतम्। राष्ट्रे पश्चिम बंगगे पुरुलियाख्ये मंडले भारते
ग्रामो दिव्यति जारगो श्रुततया सित्या मुतस्तु श्रुतः बंगाब्देक्षि गुणश्रुतिन्दु कलिते श्रावणी पूर्णिमा तिथ्यामस्य महानुभाव सुहृदो भूजन्म मेधाविनः। श्रावण पूर्णिमा को आपका आविर्भाव हुआ। श्रावण पूर्णिमा को भी श्री बलदेव जी महाराज की जयंती मानते हैं। तो ऐसी पवित्र भगवद अवतार जयंती तिथि पर आपका मंगलमय आविर्भाव हुआ। ब्रजमोहन सिंह श्री पितृपादोस्य धीमतः जननी पद्मबाला श्रीर देवी सन्मातृमंडना। श्री ब्रजमोहन सिंह श्री आपके पूज्य पितृचरण और पद्मबाला श्री आपकी परम पूज्या जन्मदात्री माता हुई। मूल में आपके पूर्वज राजस्थान जयपुर से आपका संबंध रहा और परंपरा में आगे चल करके वहाँ से जयपुरा दागत्य सज्जारगो ग्रामे, सज्जारक ग्राम में जो बंगाल की धरा के अंतर्गत है, वहाँ पूर्व बंगाल में वहाँ आपने निवास किया और अपने पिताजी के आदेश से आदेशेन पितु सवर्ण तरुणो वाल्मीकि रामायणे व्यासश्री कृत भारतेथ कृतवान व्युत्पत्ति लाभम तथा। देखो आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और पंचम वेद महाभारत, इसको यदि किसी ने आद्योपांत नहीं पढ़ा तो वह सनातन धर्म के मर्म को किंचित भी नहीं समझ सकता। यह पढ़कर के इतनी प्रसन्नता हुई कि ऐसे अनुपम महापुरुष आचार्य कोटि के महापुरुष जिन्होंने संपूर्ण श्रीमद् वाल्मीकि और संपूर्ण श्री महाभारत को आद्योपांत हृदयंगम किया, हृदयस्थ किया। शास्त्रे व्याकरणे तथा ही कविता साहित्य शास्त्रे परम श्रीमद् रामचरितमानस महो चक्रे स्वकंठेधिकम। श्रीमद् रामचरितमानस को भी आपने आदर दिया, अपने कंठ में विराजमान किया और उसके माध्यम से गांव-गांव में मंडल मंडल में आपने वैष्णवता का भक्ति का प्रचार किया। और आपकी यह जो दिव्य साधना है, उस साधना का दिव्य परिणाम यह हुआ कि आपको यहाँ श्री राधा कुंड में, संक्षिप्त कर रहे हैं इसको, श्री राधा कुंड में श्रीमन माथुर मंडले सुमनसः ख्रीस्तेन्दु बाणाग्रहेन्दु व्याप्ते, जो सन है उस सन का ये संकेत है। भजन स्थली मधुर राधा कुंड खंडे कृता श्रीमत् कुंज विहारी दास सुजना दस्या भवदीक्षणम तत्स्वीकर्तु शरेन्द्रु शरग्रहेन्द्रु कलिते काले विरक्ति स्थिते। आपने विधिवत विरक्त वेश अपने गुरुदेव श्रीमत् स्वामी कुंज विहारी दास जी के चरणाश्रय में स्वीकार किया। दुर्गा नवमी की तिथि को आपने यह विरक्त वेश लाभ प्राप्त किया और आपका दिव्य नाम अनंतश्री संपन्न सद्गुरुदेव पदवाक्य प्रवाण पारावारीण परम भागवत अनंतश्री समलंकृत श्रीमत् स्वामी अनंत दास जी महाराज। हाँ, क्या कहना, लगता है ऐसे महानुभाव के लिए ही दुर्वासा जी ने कहा होगा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टमद्य में कृतागसोपि यद्राजन मंगलानि समीह से। कृतागसोपि यद्राजन मंगलानि समीह से। और गुरुजनों की कृपा करुणा की झलक, उनके वैदुष्य की झलक, उनके अपूर्व ज्ञान की झलक उनके कृपा पात्रों में झलकती है। उनकी साधुता, सरलता, सज्जनता और अंतर्मुखता की दिव्य झलक आप सब में मिल रही है। पूज्य श्री महंत जी महाराज, उनको ऐसा दिव्य स्वरूप है महाराज, उनको कोई परिचय नहीं करावे तो पता ही नहीं चले कि वे यहाँ महंत पद पर विराजमान हैं। ऐसी दैन्य की, भाव की, विनम्रता की साक्षात प्रतिमूर्ति पूज्य श्री महंत जी महाराज और पूज्य महाराज जी के अनंत अगाध ज्ञान की, वैदुष्य की प्रतिमूर्ति, सरलता, साधुता की प्रतिमूर्ति पूज्य हमारे बड़े गुरु भाई जी, उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इतने दिव्य महापुरुषों से हमको श्री ठाकुर जी ने, श्री जी ने जोड़ा, इसके लिए हम ठाकुर जी, श्री जी को प्रणाम करते हैं।
अरुणा मंजरी नामना श्री राधा नित्य सेवने नित्य निकुंज लीलायाम अनंतो नंततोपमः। ऐसे श्री गुरुदेव के चरणों में श्री हरिगुरु संत चरण रत्यभिलाषी दासानुदासः यशंखान प्रणामान विनिवेदयन् विरमामि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री श्री राधा कुंड की श्री श्री कृष्ण कुंड की श्री दास गोस्वामी पाद की श्री गौर भक्त वृंद की श्री दामोदर मास महामहोत्सव की जय। परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरुदेव भगवान की सब संतन की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल। परम पूज्य पादानाम श्रीमत् आचार्य चरणानाम चरणार वृंद द्वंदम पुनः पौन पुण्येन वंदे देव भवंतं वंदे। मन मानस मधुकर भवत वचनामृत मरंदेन मकरंदेन चिर आबद्ध चिरोदासोस्मि कृतदासोस्मि परंतु वंचितोस्मि वंचितोस्मि। भवन मुखकमल विगलन मरंदं पायं पायं पीत्वा पीत्वा निपीय निपीय वयं खलु धन्या भविष्यामः इति मन्यामहे। भवान भूरिदानां शिखामणि शिरोमणि राजमणि विजयताम् इति प्रार्थनां भवदीय विबुध वृंद वंदित पदार वृंदे निवेद्य इति विज्ञप्तिं समर्प्य अस्यां संध्यावेलायां सायन्तनी अवसरे वयं सर्वे आनंदिता भवाम भवेयम् इति सम आश्रव आश्रवा वयं सर्वे पुनः भवद आगमनं प्रार्थामहे। भवद दर्शनाभिकांक्षां व्यक्तीकरिष्यामः। वंदे ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वंदे 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 महापुरुष महानुभाव ते चरणार वृंदम।